Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding decoding session of the Hindu, 3rd of September 2023. So now today's discussion, these are the topics which we have chosen for you all. Number one is the Aditya L1 mission. Number two is about the Operation Gaj. Number three is about the evolution of the cell cycle. And as we know, today is Sunday, so definitely there is no editorial section in today's newspaper, and all the news are related to what? Your environment section, your science and technology section, or the biology section. So you can connect or you can relate these topics directly from your GS paper 3 of UPSC syllabus. Now, before we move to our main discussion, this is our channel IAS Cafe. Please do subscribe it. If you're really liking our video, like our videos, share our videos with as many students as possible so that we could reach out to the students, we could make the UPSC journey very easy. Now, coming back to the main topic, that is about the Aditya L1 mission. If I talk about the Aditya L1 mission, the date of its launch is 2nd of September, that means the date of yesterday. ISRO has decided this particular date to launch the mission Aditya L1 just after the success of the Chandrayaan 3 mission, which is related to the moon surface. So ISRO is on fire, right? ISRO is launching missions on missions. ISRO is showing a huge successful. So we should get a bit of brief information about the ISRO. From where did this thing started? About the dreams of ISRO, the basics of this mission, everything. So before I read out the content from the newspaper for you, I would like to draw your attention towards the basics of it. If I talk about India, India was a colony under the British Empire. थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलिए तो जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज था और जब हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद तो क्या इंडिया के अंदर जो कंडीशंस थी वो सूटेबल थी, वो फेवरेबल थी? नहीं, पॉवर्टी था, गरीबी था, इलिटरेसी था, हेल्थ कंडीशन बहुत बुरी थी, देयर वाज वेरी वर्स्ट कंडीशंस. अगर आपने इकोनॉमिक प्लानिंग्स पढ़ी होगी, 5 ईयर प्लान अगर इकोनॉमी के अंदर आपने पढ़े होंगे, इफ आई टॉक अबाउट द 5 ईयर प्लान, तो सबसे पहला उसमें पॉवर्टी को हटाने के बारे में बात करी गई थी, फिर किस तरह से जॉब दी जाए, किस तरह से एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाए, राइट? तो हर 5 साल में एक प्लानिंग हो रही थी कि किस तरह से इंडिया को एक तरफ अपलिफ्ट किया जाए. तो इंडिया का जो कंडीशन था दैट वाज वेरी पॉवर्टी स्ट्राइकन बोल सकते हो. इलिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा था. आई एम सॉरी द स्पेलिंग इज रॉन्ग. यू कैन कंसीडर द इलिटरेसी रेट एज समथिंग अराउंड द 12%. इन सब के बावजूद, ऐसी कंडीशंस के बावजूद 1962 a committee was formed, that is Indian National Committee, right? So there was a committee which was known as the Indian National Committee. Okay, let me erase it. So if I talk about 1962, a committee was formed which was known as Indian National Committee. Why it was formed? To establish a space research center to establish for the space research. भारत जैसा देश जो बहुत ही गरीब था, जहां नौकरी नहीं थी लोगों के पास, हेल्थ कंडीशंस पुअर थे, ऐसे हालात में होने के बावजूद हमारे देश में 1962 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम था अबाउट द स्पेस रिसर्च. और यही आगे जाके इसका सब्सटीट्यूशन बना, इसको रिप्लेस किया किसने? इसरो ने. दैट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट द इसरो, it is about the Indian Space Research Organization. अब अगर इंडिया का ये जो इसरो है उसको अगर हम नासा से कंपेयर करें या फिर बाकी डेवलप कंट्रीज की जो भी स्पेस एजेंसीज होते हैं उनसे कंपेयर करें,
इसरो का जो बजट था हमेशा से कम था। वाई? क्योंकि हमारी कंट्री की जो हालत है वो बहुत बुरी थी। इसके बावजूद 1962 में ये कमिटी बनी, फिर यहाँ पे इसरो आया। 1975 में पहला जो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया इसरो ने, दैट वाज आर्यभट्टा सैटेलाइट। ठीक है, तो जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या था? आर्यभट्टा सैटेलाइट। और उसी के साथ और भी कुछ सक्सेसफुल चीजें थी, जैसे कि पीएसएलवी जो है वो इसरो ने डेवलप किया, और एसएलवी जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो डेवलप किया, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज द मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये भी इसरो के द्वारा सक्सेसफुल हुआ अराउंड 2014। तो आप बैकग्राउंड से ये समझ सकते हो, इसरो इज सो एम्बिशियस, इसरो इज सो फोकस्ड, इसरो इज सो डेवलपिंग इन इटसेल्फ, कि आज के जो मिशन है जिसको हम चंद्रयान 3 या फिर आदित्य एल वन की नजर से देख रहे हैं, ये कोई पहली बार इसरो ने ट्राई कर रहा है। इसरो हमेशा से ऐसे मिशन ट्राई करता रहा है। और यहीं से एक सोलर एक्सप्लोरेशन का मिशन जो है इसरो ने डिसाइड किया था कि जो सोलर सरफेस है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, यानी जो सन है वहां पे जाने का एक मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले आदित्य 1, यहाँ पे मैं L1 नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसरो ने जो मिशन का जो नाम दिया था वो था आदित्य 1, इसरो। ठीक है जी। अब इस आदित्य 1 का काम क्या था कि सन का जो कोरोना है उसकी ये स्टडी करेगा, राइट? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? दैट इट विल स्टडी द कोरोना। अब आदित्य 1 में कोरोना की पढ़ाई की बात करी गई थी, रिसर्च के बारे में बात करी थी। आदित्य 1 में हम फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर या तो उसके और भी जो लेयर्स उसके बारे में बात करेंगे। बट ये एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज कोरोना, व्हाट इज फोटोस्फेयर, उसको हम समझते हैं। सपोज करिए ये हमारा सन है। ठीक है, तो दिस इज अ सन। तो जिस तरह से अर्थ की अलग अलग लेयर्स होती है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, उसी प्रकार से जो सन है वहां पे आपको अलग अलग तरह की लेयर्स मिलती है। तो सबसे सेंटर में आपको कोर मिलता है, ये है आपके पास सन का जो कोर वाला रीजन है वो हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द कोर। एंड आफ्टर द कोर आपको यहाँ पे मिलता है रेडिएटिव जोन। ये क्या हो जाएगा आपके पास? रेडिएटिव जोन, यानी जहां पे वो जोन जहाँ पे फिशन जो रिएक्शंस वगैरह होती है, जहां से सन अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो हो जाएगा रेडिएटिव जोन। और देन फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट जोन होता है वो हो जाता है कन्वेक्शन जोन, राइट? तो जो नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास जो जोन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन जोन हो जाएगा। अब इस कन्वेक्शन जोन के बाद में छोटी छोटी पतली सी और लेयर्स होती हैं। ये है आपके पास लेयर फोटोस्फेयर। ठीक है, तो फोटोस्फेयर जो लेयर है इट इज द एक्चुअल में ये विजिबल पार्ट ऑफ द सन है जो कि हमें दिखता है। ठीक है, सो फोटोस्फेयर इज द विजिबल पार्ट ऑफ द सन जो कि हम देखते हैं। और इस फोटोस्फेयर के बाद में एक और लेयर आती है जिसको क्रोमोस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोस्फेयर है और फिर है आपके पास क्रोमोस्फेयर। अब इस क्रोमोस्फेयर के बाहर का ये जो आपके पास कंडीशन है या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, कि ये जो सन है उसके चारों तरफ बाहर का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, दैट कंडीशन इज नोन एज द कोरोना। इसको बोला जाता है कोरोना। क्लियर है? सबसे पहले सेंटर में होगा कोर, उसके बाद होगा आपके पास रेडिएटिव जोन, और उसके बाद आपके पास होगा कन्वेक्शन जोन, देन योर फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। Photosphere is the visible part of the sun and corona is the outer atmospheric condition वाला जो पार्ट है सन का वो आ जाएगा। तो जब इसरो ने इनिशियली आदित्य 1 लॉन्च किया था, आई एम सॉरी लॉन्च नहीं अनाउंस किया था, तब वहां पे उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सन का जो कोरोना है वो उसको यहाँ पे स्टडी करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इट विल बी स्टडिंग द कोरोना ऑफ द सन। अब यहाँ पे जब सन की कोरोना के बारे में बात हो जाती है, इसको रिप्लेस किया गया था आदित्य 11। Give me a second. तो उसी का ही एक मॉडिफाइड नाम है आपके पास आदित्य 11।
अब आप बोलोगे कि क्या इसरो को सपना आया था कि हम आदित्य नाम रख देते हैं, आदित्य कपूर एक्टर चल रहा है बॉलीवुड में, या फिर L1 रख देते हैं ABCD के हिसाब से? नो. If we talk about the nomenclature of this mission, that is Aditya L1, this Aditya is a Sanskrit word for sun. यानी सन का अगर आप हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हो तो उसमें एक आदित्य नाम भी आता है, आदित्य, सूर्य, दिनकर. ओके. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस 11 पॉइंट, सी अगर ये आपके पास सन है और ये है आपके पास अर्थ, तो स्पेस में कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां पे इन दोनों का जो फोर्स है, स्पेशली द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है. तो वहां पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो ना वो, देखो फिर से सुनेंगे हम, व्हाट आई एम सेइंग कि फॉर एग्जांपल दिस इज सन, तो सन का एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जाएगा. सिमिलरली अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप अर्थ के सामने रख दो तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये यहाँ जाएगा. तो L1 पॉइंट जो है, यानी कि ये आपके पास सन है और ये आपके पास अर्थ है, और इनके बीच में एक L1 पॉइंट है जिसको लैग्रैंजियन पॉइंट या फिर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 बोला जा रहा है. वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इन दोनों की तरफ की दोनों मासेस, यानी एक सन और एक अर्थ, इनका जो मास है वो इक्वल होता है. यानी ये ऑब्जेक्ट ना सन की तरफ जाएगा ना अर्थ की तरफ जाएगा. अगर अर्थ सन की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो भी अर्थ के साथ साथ सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, बिना किसी एक्सटर्नल फ्यूल के रिक्वायरमेंट के, बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के. इसीलिए स्ट्रैटेजिकली इसको, ऑब्जेक्ट को या सैटेलाइट को हमने L1 पॉइंट पे रखा हुआ है. तो यहां से नाम आपको समझ में आ गया होगा आदित्य L1 मिशन का. दैट इज आदित्य is the Sanskrit word for the sun. L1 is a point between the earth and the sun, that is a Lagrangian point, where if you point where we keep a object that will require very less amount of the fuel. Why? Because the force is actually balancing between the sun and the earth out there. Clear hai? Clear hai? Now, next point. What is the aim or difference? देखो, जब इनिशियल आदित्य जो मिशन था उसको एक लोअर ऑर्बिट में भेजने की बात करी गई थी, बट L1 में हम थोड़े से इसको हायर ऑर्बिट में भेजने की बात कर रहे हैं, दैट इज द हेलो ऑर्बिट. ठीक है, डिफरेंस समझेंगे. आपके पास इनिशियली जो आदित्य मिशन था और अभी जो आदित्य L1 मिशन है, तो दिस वाज फॉर द लोअर ऑर्बिट एंड दिस इज फॉर द हेलो ऑर्बिट. दिस वाज टू स्टडी अबाउट द कोरोना ऑफ द सन. यहाँ पे हम कोरोना भी की रिसर्च भी करेंगे. अब फोटोस्फेयर जो है, अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फोटोस्फेयर, राइट. फोटोस्फेयर भी पढ़ेंगे. जो क्रोमोस्फेयर है हम उसकी भी यहाँ पे रिसर्च करेंगे. जो सोलर इरप्शंस है इसमें जो वेरिएशंस है हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, कि ये जो आपके पास मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. द नंबर वन ऑब्जेक्टिव जो है, ये साइंटिस्ट को मदद करेगा जो कोरोनल हीटिंग है उसको समझने में. ठीक है, कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वहां पे जो हीटिंग है उसका रीजन क्या है. बाकी सन की ये जो अलग अलग लेयर्स है इनकी एक साथ, दैट इज साइमल्टेनियस इमेजेस लेने में ये मिशन हेल्प करेगा. दैट इज simultaneous images of multiple layers of the earth, right. So here we will be talking about the multiple layer of the earth. It will also help to understand the coronal mass ejection. All right. So now, if the
basic is clear. Now we can go to the content of the newspaper. That India has carried out experiments to study the sun using the satellite earlier, that is the Aditya L1, which aims to park a spacecraft in the L1 spot. Aditya L1 is also the ISRO's second astronomy observatory class mission after the AstroSat जो कि 2015 में आया. Indian scientists have so far observed the sun. अभी तक इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो सन की सरफेस उसको सिर्फ ग्राउंड से टेलीस्कोप की मदद से पढ़ने की कोशिश करी थी. तो ये पहला होगा जब हम वहां पे जाके इसको पढ़ने की कोशिश करें. ठीक है. सर इंडिया लैक हमेशा से इंडिया के पास एक ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटी की कमी थी. हमारी कंट्री हमेशा दूसरे कंट्री के सोर्सेज पर डिपेंड होती थी. तो आदित्य एल1 एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है इंडिया के सामने इन एग्जिस्टिंग गैप्स को फुलफिल करने की. ठीक है. Science missions also take longer to develop since technical developments can be demanded. Eyes in the space. Solar flares हो या coronal mass ejection हो, solar wind हो, right? या फिर आप सन के स्पेस वेदर को समझने के बारे में बात करते हो, ये मिशन हमको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है. Now, स्पेस वेदर अलर्ट, आप अगर इसको सक्सेसफुली मिशन को कर देते हैं so it will generate a user-friendly information that can help safeguard a range of satellite-dependent operations, such as the telecommunication, the mobile-based internet services, navigation, power grid, etc. Now, L1 and afterward, इसकी जो लाइफलाइन है वो कम से कम 100 डेज की है to cover 1.5 million kilometer distance to L1. This is a shorter voyage because मंगलयान के लिए 298 डेज थे. L1 एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक लोकेशन है. देखो L1 जो है हमने अभी अभी समझा, उसकी थ्योरी हम देखते हैं. That Lagrange point are positions in a moving two body system where forces acting on a third body of a smaller mass cancel each out. A spacecraft placed between the Earth and the Sun and wanting to move with them would feel the gravitational pull from each side as well as the centrifugal force by virtue of moving in a circular or elliptical orbit. So there are 5 points in a two body system जिसमें से एक आपके पास L1 पॉइंट भी आता है. Here नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन गज के बारे में. ऑपरेशन गज आप ऐसे याद रखिए हाथी से रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड आपके पास गज उत्सव था 2023 का. तो हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर है, ठीक है, ये आपके पास असम है. असम में आई वुड लाइक टू नो आपको क्या क्या पता है. क्या वहां पे मानस, ओरांग, नामेरी और काजीरंगा, दीज आर द नेशनल पार्क देयर, राइट. तो उसमें से एक है आपके पास काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पे द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की, उन्होंने गज उत्सव इनॉग्रेट किया to mark the 30 years of the project L. Okay, sorry. अब एशियन एलिफेंट जो है उसके बारे में देखते हैं. इनका अगर हैबिटेट जो है वे इनहिबिट ड्राई टू वेट फॉरेस्ट एरियाज पे आपको मिलेंगे. देन कम से कम 50 से 60 हजार एशियन एलिफेंट्स पूरी दुनिया में आज की डेट में है. हमारे यहाँ पे 33 एलिफेंट रिजर्व है. लैम्ब्रो एलिफेंट रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है. अगस्तमलाई जो तमिलनाडु का है. तराई जो उत्तर प्रदेश का ही पिछले साल 2022 में नोटिफाई किया गया. तो इनका जो इंडेंजर्ड है वो इनका कंजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट. IUCN अगर स्टेटस के बारे में बात करो, क्योंकि यूपीएससी फेवरेट क्वेश्चन है पूछने के लिए कि इनकी स्टेटस क्या है, तो वो इंडेंजर्ड हो जाएगा. रेड लिस्ट में सर्टेन स्पीशीज में आता है आपके पास. और अगर आप कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज का स्टेटस देखो तो वो अपेंडिक्स 1 के अंदर आपके पास आएगा. तो थ्रेट किससे होता है? हाथी की जो दांत है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसीलिए हाथी को इलीगली मारा जाता है, पोचिंग किया जाता है, चाहे अफ्रीकन हाथी हो या एशियन एलिफेंट हो. अगर आपने सुना होगा गांव में वो हाथियों के चूड़े भी बनते सफेद कलर के, है ना, बहुत महंगे होते. तो द लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस इन माइनिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैज बिकम प्रॉब्लमेटिक स्पेशली फॉर द एशियन एलिफेंट. So it is significant concern as the human population increases. आप देखो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, फॉरेस्ट एरिया आपके पास कम हो रहा है.
जिसकी वजह से हाथियां जो है आपके पास, हाथी लोग जो है उनका आप जो नेचुरल हैबिटेट है आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के जो एग्जाम्पल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि प्रोजेक्ट आर ई हैबिट, लिडार टेक्नोलॉजी है, नेशनल पोर्टल है, ये सब हाथी को बचाने के लिए किया गया। फिर अब आपका आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द सेल साइज। इसमें आपको बेसिक समझ लीजिए, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको पता होना चाहिए सेल क्या है, एक आपको पता होना चाहिए जीन क्या है, एक आपको पता होना चाहिए जीनोम क्या है, और एक आपको पता होना चाहिए म्यूटेशन क्या है। ठीक है, क्या टर्म्स हमने लिया? हमने लिया सेल क्या है, जीन क्या है, जीनोम क्या है, और म्यूटेशन क्या है। अब स्टार्ट करते हैं। जब मैं सेल के बारे में बोलती हूँ तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसका स्मॉलेस्ट बेसिक जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, सेल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स द यहाँ पे आप देख सकते हो द सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यानी एक हम प्लांट सेल को कंपेयर कर सकते हैं और आप एक एनिमल सेल को कंपेयर कर सकते हो। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आई थिंक 2 साल पहले ही पूछा गया है, इन्हीं 2-3 सालों में एक बार ये आया था कि प्लांट और एनिमल सेल का जो डिफरेंस है वो क्या है। प्लांट सेल जो है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, यानी जो सेल है उसकी भी लेयर्स होंगी। तो प्लांट की जो आउटर लेयर होती है वहां पे आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी, इसी से आपका आंसर निकल जाना चाहिए। जबकि जो एनिमल सेल है वहां पे आपको सेल वॉल नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन मिलती है, या फिर आपको इसी सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है किसे, एनिमल में, और प्लांट में सबसे पहले सेल वॉल मिलेगी और फिर आपको ये सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी मिलेगा। लेकिन जो एनिमल सेल होता है वहां पे आपको सेल वॉल नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलता है। ठीक है, अब इनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, न्यूक्लियस होगा। और इस न्यूक्लियस के साथ और भी ऑर्गन्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल्स, राइट। तो ये हो गया आपके पास सेल। अब सेल के अंदर ये जो मैंने न्यूक्लियस बनाया इसको आप बाहर निकाल दीजिए। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनेंगे, ये मैंने क्या बोला कि एक सेल है, सेल के बीचों बीच क्या है, ये एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस को अगर मैं बड़ा डायग्राम बनाती हूँ इस तरह से, तो ये न्यूक्लियस में आपके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ये जेनेटिक मटेरियल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टू कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। ये जेनेटिक मटेरियल आपके पास डीएनए का भी हो सकता है और आरएनए का भी हो सकता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं पे छोटी छोटी जीन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जीन वो हेरिडिटरी फीचर्स है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, और उन्हीं जीन के जो ग्रुप है, जो आपके पास ह्यूमन बींग्स में या किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो सेट मिलता है उसको आप जीनोम बोलते हो। और इसके अंदर अगर कोई ब्लेंडिंग या चेंज हो जाता है उसको आप म्यूटेशन बोलते हो। ये टर्म्स क्लियर है? अब आप इसको पूरे आराम से पढ़ सकते हो, जिसमें सेल के बारे में बात कर रहा है। बट यू मस्ट know about the cell क्या है, difference between the plant and animal cell, difference between the prokaryotic and animal cell, eukaryotic cell, what is mutation, what is gene, what is genome, what is genetic material, what is DNA, and what is RNA. Yeah. So thank you so much. This is it for today. I hope you liked the video. Please do subscribe our channel. Thank you so much.